Okay, copy the question. We will solve numericals. Last time we discussed the theory. We started with some questions also. So now we will continue with the questions. Please copy the question. Okay. So now there are two components in the solution. I mean, in the aqueous solution. Okay. So aqueous solution consists of two different components. There are two silver salts. One is AgSN and one is AgPr. And in the question, they have given the KSP values, which means that both of the salts are sparingly soluble. KSP is given for both the salts. Since KSP values of salts are given, we can conclude that both the salts are sparingly soluble in water, which means I am supposed to use the concept of solubility and solubility product. If any salt is sparingly soluble in water, I am supposed to use the concept of solubility and solubility product. And this solution consists of both the components. That means there are two sparingly soluble salts in the same solution. There are two sparingly soluble salts in the same solution, right? So how do I start with this? Yes, how do I start with this? Yes, how do I start with this? What is the first step? I can show the dissociation. Ag plus is the common ion. करेक्ट. तो दोनों का डिसोसिएशन दिखाने के बाद I will assume let the solubility of AgHCl be x moles per liter and let the solubility of AgBr be y moles per liter. इतना तो assume कर सकते हैं. Solubility निकालने के लिए बोला है ना. Let the solubility of AgHCl be x and let the solubility of AgBr be y. अब क्या करना चाहिए? KSP दिया है तो बताओ क्या लिखूं फिर KSP के लिए एक्सप्रेशन AgHCl के लिए.
x square equals to 10 to the power minus 2. नॉट एग्जैक्टली, अभी देखो एजी प्लस टोटल लेना पड़ेगा ना सोल्यूशन में। x plus y into x. ओके, यस करेक्ट। तो AgSCN का जो KSP है वो 10 to the power of minus 12 है, ऐसा आएगा। 10 to the power of minus 12 is equal to concentration of Ag plus into concentration of SCN minus। अब Ag plus का जो concentration है वो टोटल लेना पड़ेगा ना, बिकॉज AgSCN ले लेंगे एंड AgBr दोनों से ही आ रहा है, तो x plus y लेना पड़ेगा, लेकिन SCN minus का सिर्फ x ही लेंगे, बिकॉज SCN minus is being provided only by one salt। तो ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। व्हाट अबाउट इक्वेशन 2? x plus y into y हो जाएगा। AgBr का KSP is given 5 into 10 to the power of minus 13, ऐसा हो जाएगा। फिर Ag प्लस और Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब Ag प्लस का फिर से टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, x प्लस y है, तो अगेन आई कैन राइट दिस इक्वेशन। So I have two equations and two variables, 1 and 2. I can solve them simultaneously. To start with, I can divide 1 by 2 ताकि x plus y और x plus y कट जाए, तो ऐसा हो जाएगा। फिर yes, then after this I'll get a relation between x and y। अब क्या करूं? फिर अब डाल देंगे उसको इक्वेशन में, कोई भी एक इक्वेशन में डाल देंगे। चलो इक्वेशन 1 में डाल दिया x को 2y, तो ऐसा आ जाएगा। फिर राइट, ऐसा हो जाएगा। I can take square root on both sides to get y। 10 to the power of minus 12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 to the power of minus 6, और ये रूट 6 हो जाएगा। रूट 6 कैन बी रिटन एज रूट 2 into रूट 3। रूट 2 का वैल्यू हमको पता है 1.41 एंड रूट 3 इज 1.73। मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, आ जाएगा फिर रूट 6। तो y का वैल्यू आ गया ऐसा। अभी वापस हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 2y डाल के। तो आ गए सॉल्युबिलिटीज के वैल्यू, करेक्ट। Yes, any doubt anybody has? तो पहले हमेशा डिसोसिएट करना होता है, कोई भी आप स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लेते हो तो उसको पहले डिसोसिएट करके देखो क्या क्या आयंस हो रहे हैं।
Okay. Any doubt? So if you have understood this, you can start with this question. I'll explain this question, but first copy the question. Very very important type of question. Start. कॉपी करो पहले पूरा क्वेश्चन फिर समझाता हूं मैं. सर थोड़ा नीचे कीजिए ना. Copied the question. Okay. Okay. Copy your question. सर गिवन में और कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं.
फाइन, पहले क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन गो अहेड। ध्यान से सुनो, अभी जो अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये मैं करके समझा रहा हूँ पूरा, अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर? नाउ AgBr is the sparingly soluble salt. Now NH3 is the other component जो कि solution में present है। मतलब क्या है, फिलहाल solution में पानी तो है ही, चलो साथ ही साथ we have AgBr and also NH3। हमें AgBr की solubility निकालनी है। मतलब अब जब AgBr को डालोगे वो पहले स्प्लिट होगा ऐसे, अब इसके बाद ये जो चीज है Ag plus, that will immediately combine with ammonia to form another complex called this, जिसको ऐसे लिखा जाता है। अब बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को, तो ऐसा होगा। नाउ द पॉइंट इज हाउ विल वी नो कि ये बनेगा? अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये स्पीशीज ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो क्या है, मतलब हिंट दे के रखा है कि ये बनेगा। Just remember that whenever Ag plus is present, AgBr हो या AgCl हो, Ag plus अगर है और अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे के रखा है तो मतलब ये बनेगा, ये आपको बनाना है, मतलब that is indication, that is an indication। और बनाओगे कैसे आप? आपको ये वाला इक्वेशन लिखना पड़ेगा, that is Ag plus plus 2NH3 giving AgNH3 twice and then plus sign। अगर आप देखोगे रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस्ड है, you have to balance the equation। तो ये पता होना चाहिए कि पहले ये लिखना है और उसके बाद ये लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में हिंट देके रखा है कि AgNH3 twice प्लस, जब भी AgNH3 twice दिखे, AgNH3 twice and then whole plus sign, that is an indication कि आपको ये वाला रिएक्शन लिखना है। वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको बता रहा है। ओके, वैसे ही अगर कुछ और होता इसके बदले में तो फिर वो बनाना पड़ता। सो क्वेश्चन में इंडिकेशन है कि क्या बनाना है। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट सॉल्युबिलिटी पूछा है तो लेट द सॉल्युबिलिटी बी S, ऐसा कुछ मानेंगे फिर से S या X, जो भी आपको मानना है। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन दिस सॉल्यूशन बी X और S मोल्स पर लीटर, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हो। तो ऐसा पहले रिएक्शंस लिखोगे सीक्वेंस का। ओके, इट हैज टू बी अ प्रॉपर सीक्वेंस। और फिर लेट द सॉल्युबिलिटी बी S या X मोल्स पर लीटर करोगे। नाउ अगर मैंने बोला कि सॉल्युबिलिटी यहाँ पे S मोल्स पर लीटर है, चलिए यहाँ पे माना है मैंने S मोल्स पर लीटर, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr बी S मोल्स पर लीटर। तो अगर मैंने यहाँ पे S लिखा है और यहाँ पे भी S लिखा है, इमीडिएटली इन द नेक्स्ट इक्वेशन ये तो बदल जाएगा ना, यहाँ पे कुछ रिएक्ट हो जाएगा इस वाले रिएक्शन में। कहने का मतलब क्या है कि जो Ag प्लस यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वहां से कुछ तो रिएक्ट हो जाएगा ना सेकंड रिएक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि चलो X moles of Ag plus have reacted, which means at the end of all these things I'm left with S minus X moles of Ag plus, and if I'm left with S minus X moles of Ag plus, तो रिएक्शन अगर एक ही कंटेनर में हो रहा है बिकॉज सब कुछ एक ही वेसल के अंदर है, तो यहाँ पे भी मुझे अल्टीमेटली S minus X लिखना पड़ेगा Ag plus के नीचे। Exactly same as what we used to do in chemical equilibrium में, simultaneous equilibrium। मतलब जो एंड में बचेगा वो कॉमन रहेगा ना, सोल्यूशन सेम है तो।
तो अगर आप यहाँ पे s माइनस एक्स लिख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको s माइनस एक्स से लिखना पड़ेगा, because it is the same ion which is present. मतलब at the end of all these reactions you will be left with s minus x moles of Ag plus and not s, because in the second reaction x moles of Ag plus have been consumed. तो ये ध्यान में रखना है कि एंड में जो बचेगा वो s minus x moles of Ag plus will be left behind in the solution. लेकिन ब्रोमाइड को कोई असर नहीं पड़ेगा, तो Br माइनस का ऐसे रहने वाला है, बिकॉज ब्रोमाइड कोई दूसरे वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसके नीचे ऐसे रहेगा, बट इसके नीचे s माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि x moles have reacted in this reaction. So the final concentration of Ag plus, if I ask you. सर Yes. सर ऊपर तो s ही रहेगा ना, नहीं, नीचे but- s माइनस एक्स आएगा ना. At the end तो वेसल वही है ना, तुम्हारा सोल्यूशन के अंदर Ag plus कितना हो रहा है, Ag s माइनस एक्स ही बच रहा है ना, हाँ तो फिर s माइनस एक्स से लिखना पड़ेगा ना, जो अल्टीमेट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वही लिखना पड़ेगा ना, बच तो वही रहा है ना, s का कोई अभी Ag plus s जो बना था वो इमीडिएटली उसमें से x तो निकल गया ना, तो बचा तो s माइनस एक्स ही है. हाँ सर. ये अगर सेकंड रिएक्शन नहीं होता तो Ag plus के नीचे हम लोग s लिखते हैं when it is only present in water, बट अभी ऐसा नहीं है, x मोल्स तो चले गए, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग s यहाँ पे. So s minus x is the final concentration of Ag plus. That is the main catch. लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं, इसको s रख देते हैं, इसको s minus x करना भूल जाते हैं. आयन तो सेम है ना, आयन तो वही है, तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा, एट द एंड कोई एक ही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ना. सो वेसल इज सेम, तो अल्टीमेटली Ag plus जितना रहेगा that is s minus x, but bromide will remain as s. Correct? So now we can start with the equations. Br माइनस पे कोई असर नहीं आ रहा है, वो किसी दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसका कोई चेंज नहीं आएगा वैल्यू में. सो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस लिखना पड़ेगा पहले. देन let the solubility of AgBr be s moles per liter. So at equilibrium, that means what? When everything is over, when both the reactions are over. Over in the sense when both the reactions have reached equilibrium. तो Ag plus का कितना होगा? S minus x moles per liter. और Br minus का s moles per liter. इसके लिए देखो मैंने लिखा है T equal to Teq. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ये वैल्यूज. और इस वाले रिएक्शन में भी इस तरीके से हम लोग T equal to Tq लिख सकते हैं. This portion. Okay. If x moles of Ag plus react, 2x moles of NH3 will react. And x moles of this species will be formed. Okay. अब मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख सकता हूं KSP का. KSP क्या होगा? We know that KSP is equal to concentration of Ag plus to the power of 1 because 1 है coefficient into concentration of Br minus to the power of 1 because 1 is the coefficient of Br minus. And ये K stands for equilibrium ना. Solubility product is nothing but at equilibrium because मतलब जब ये reaction equilibrium achieve कर चुका है, तो जो Ag plus के concentration है और Br minus का concentration है, दोनों के दोनों equilibrium के वैल्यूज लेने पड़ेंगे, which is this and this. तो KSP का जो वैल्यू है वो दिया है क्वेश्चन में, बट Ag plus का concentration क्या आएगा? S minus x और Br minus का S. तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे S minus x और यहाँ पे S,
तो ये आ जाएगा, दिस इक्वेशन इज व्हाट आई विल गेट। इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन 1, तो मैंने इक्वेशन कर दिया, लेबल कर दिया इक्वेशन 1, रोमन न्यूमेरल में लिखा है 1, and this Ksp value is given. Similarly, I can write equilibrium constant for this particular reaction also. क्या रहेगा वो? This species, that is x moles per liter to the power of 1, because 1 is the coefficient, upon s minus x to the power of 1, because 1 is the coefficient of Ag plus, and then 0.4 minus 2x to the power of 2, because 2 is the coefficient of NH3. जैसे कैसे लिखते हैं वही, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। अब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली देके रखा है। नाउ अनदर कांसेप्ट हियर, Kd। देखो Kd देके रखा है, किसका Kd देके रखा है? AgNH3 twice plus का। What is D here? D stands for dissociation, and F stands for formation। मतलब क्या? ये Kf नहीं दिया है, ये Kd देके रखा है। ये जो दिया है ना क्वेश्चन में वैल्यू, ये देखो Kd लिख के रखा है, जबकि हम लोगों ने जो बनाया है, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है दिस रिएक्शन, इसमें देखो ये बन रहा है, तो ये Kf होगा। तो जो हम लोगों ने लिखा है ना ये वाला एक्सप्रेशन, दैट इज नथिंग बट Kf। Why Kf? Because AgNH3 twice is being formed. It is on the product side of my equation. जो चीज प्रोडक्ट साइड पर रहती है वो बन रही है, एंड आई विल से दैट दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स Kf। कौन सा वैल्यू? ये x to the power of 1 upon s minus x into 4.4 minus 2x whole square। ये पूरा जो मैंने एक्सप्रेशन Kc का इस इक्वेशन के लिखा है, that represents Kf, where F stands for formation। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दिया देके रखा है? Kd देके रखा है। 1 by Kd हो जाएगा। Exactly. So 1 by Kd will be Kf. It is just the reverse reaction. D stands for dissociation, F stands for formation. हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखा है यहाँ पे वो फॉर्मेशन के लिए लिखा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 upon Kd will be equal to Kf। तो वही लिखा है यहाँ पे। So this is my second equation. So 1 upon Kd is equal to Kf. So these are the concepts which I have to talk about in this particular question. क्या first concept क्या है? First concept है कि क्वेश्चन में इंडिकेशन है कि AgNH3 twice plus बनाना है। कैसे बनाना है? Ag plus और NH3 के बीच का रिएक्शन दिखा। ये पहला वाला कंसेप्ट था। सेकंड कंसेप्ट क्या था? सेकंड कंसेप्ट ये है कि कोई भी आयन जो कॉमन है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड पे हो या प्रोडक्ट साइड पे हो, अल्टीमेटली सॉल्यूशन में उसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो उतना रहेगा जितना वो बचा हुआ है, और वो जो बचा हुआ वैल्यू रहेगा दैट इज सेम फॉर बोथ द रिएक्शंस। तो ये था दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट क्या है? अगर Kd देके रखा है, हमें Kf चाहिए, तो Kd is 1 upon Kf और Kf is 1 upon Kd। F stands for formation, D stands for dissociation। तो अभी हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को लिखा है। Now I can solve these two simultaneously and I can get the value of s and x. So I'll solve. How do I solve this? If I multiply 1 and 2, तो s minus x कट जाएगा। So if I multiply 1 and 2, s minus x कट जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, अच्छा और एक बात, 0.4 minus 2x, ये x जो है वो x क्या है? x is the number of moles of Ag plus consumed per liter। अब याद रखो s छोटा है तो x भी छोटा ही रहेगा। किसी भी चीज में सॉल्युबिलिटी तो कम ही है ना, सॉल्युबिलिटी कम है कोई भी क्वेश्चन में 10 to the power of -3 के रेंज में आता है या 10 to the power of -4 के ऑर्डर में आता है, तो x भी उसी ऑर्डर में रहेगा। So
s और x दोनों छोटे हैं, s भी छोटा है तो x भी छोटा रहेगा। लेकिन ये 0.4 माइनस 2x जो मैंने लिखा है, 0.4 का रेंज क्या है? 4 into 10 to the power of minus 1 is 0.4, तो 10 to the power of minus 1 है इसका ऑर्डर, और x का ऑर्डर 10 to the power of minus 4 ऐसा कुछ रहेगा, 10 to the power of minus 3 या 10 to the power of minus 4 या 10 to the power of minus 5 ऐसा रहेगा x का, क्योंकि सॉल्युबिलिटी हमेशा, सॉल्युबिलिटी है उसके रिलेटेड जो भी है वो हमेशा 10 to the power of minus 3 10 to the power of minus 4 के ऑर्डर में होती है। तो 0.4 के हिसाब से तो वो छोटा ही रहेगा ना, because 0.4 is 4 into 10 to the power of minus 1. So I can safely ignore this and I can say that 0.4 minus 2x is approximately equal to 0.4. So x और s दोनों के दोनों छोटे वैल्यूज हैं, तो 0.4 के हिसाब से I can ignore x. Okay. So now if I multiply 1 and 2, what will I get? s minus x कट जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ऐसा मिलेगा मुझे if I multiply 1 and 2. So sx का वैल्यू आएगा कुछ, now going back to equation 1, equation 1 में ऐसा था 5 into 10 to the power of minus 13 is equal to s minus x into s. इसको आगे सॉल्व करूंगा तो s square minus sx. तो sx का वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है, डाल दो तो ऐसा हो जाएगा, एंड ऑन सॉल्विंग दिस फर्दर इसको मैं अगर इस तरफ लेके आऊं तो s स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा कुछ। नाउ s स्क्वायर का क्या है एक्सप्रेशन, 8 into 10 to the power of minus 6 plus 5 into 10 to the power of minus 13. Now 10 to the power of minus 6 और 10 to the power of minus 13 को अगर मैं ऐड करूं तो अल्टीमेटली वो रिजल्ट 10 to the power of minus 6 ही रहने वाला है, बिकॉज़ 10 to the power of minus 13 तो बहुत छोटा है 10 to the power of minus 6. So I can safely ignore that part. Entire 10 to the power of minus 13 वाला portion I can ignore. Why? एक सिंपल एग्जांपल देखो, 10 to the power of minus 6 plus 10 to the power of minus 13 अगर मैं करके दिखाऊं तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? ऐसे लिखेंगे, कॉमन अगर लगाएंगे बाहर, if I take 10 to the power of minus 6 common, I'll be left with 1 inside and 10 to the power of minus 7. ये पॉइंट आप रिपीट कर सकते हैं? वही दिखा रहा हूं मैं कि अगर 10 to the power of minus 6 और 10 to the power of minus 13 के रेंज में मैं ऐड करता हूं तो ऐसा होगा ना कुछ। अंदर का जो पार्ट है वो क्या है? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओनली ना। So I can safely ignore this entire thing, 5 into 10 to the power of minus 13. इसको सिंपली इग्नोर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो 8 into 10 to the power of minus 6 से बहुत छोटा है इसमें। तो सिंपली ऐसा रहेगा। So 8 into 10 to the power of minus 6 plus 5 into 10 to the power of minus 13 is nothing but ऐसा रहेगा ना, अगर ये 0.000008 है, करेक्ट, ऐसा है ना, प्लस 5 into 10 to the power of minus 13 is about 0.0000 ऐसे चलता रहेगा। तो क्या मतलब है ये ऐड करके?
सीधा इसको लिख दो ना, इतना ही आएगा ना। करेक्ट। तो इन दोनों को ऐड करके अल्टीमेटली ये मिलने वाला है। So I can safely ignore 5 into 10 to the power of minus 13. तो ऐसा आ जाएगा फिर, right? And root 8 is 2 root 2. Root 8 is 2 root 2. Root 2 is 1.414. तो आ गया इसका वैल्यू। Please copy down the entire thing properly now. यहाँ से चालू होता है solution. Okay. Any doubt? If you have any doubt, you can ask, because next question will be similar to this. तो अच्छे से पहले इसको समझ लो। डन यहाँ तक? Yes, sir. यहाँ तक हो गया पूरा? So KD is 1 upon KF. F stands for formation, D stands for disintegration or dissociation. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। Done?
Yes, done. Okay. Next question. Copy this question. It is similar to the previous question. So start solving. डेटा गिवन है, उसको देख के आपको समझ में आएगा कि क्या रिएक्शन लिखना है. पहले कॉपी करो क्वेश्चन. थोड़ा नीचे आ सकते हैं. सर कौन सा बफर है ये नहीं किया. That's not required ना. वो क्या मतलब है इससे? ये देख के रखा है ना. What are the reactions to be written? सर HCN का AgCN का डिसोसिएशन डिसोसिएशन एक HCN का सबसे चेन रिएक्शंस होंगे ना. सबसे पहले क्या लिखोगे? What is the first reaction to be written? बफर का pH. नहीं, रिएक्शन पूछ रहा हूँ. What is the reaction to be written? सर HCN बफर का कैसे, मतलब बफर का लिखेंगे बेसिकली डिसोसिएशन. क्यों बफर से क्या मतलब है? तुम डिसॉल्व क्या कर रहे हो? AgCN को डिसॉल्व कर रहे हो ना. तो AgCN का पहले डिसोसिएशन लिखना पड़ेगा. Always remember, the first reaction is going to be the dissociation of the sparingly soluble salt. और फिर बाकी आगे का सोचना है. पहले हमेशा सॉल्ट का डिसोसिएशन दिखाना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस में. तो क्या होगा पहला रिएक्शन? Yes, what is the first reaction?
फर्स्ट, ये पहले लिखना है। अब हमें देखना है कि आगे कुछ और होने का स्कोप है क्या, क्या होने का स्कोप है, तो वो सेकंड रिएक्शन हो जाएगा। क्या होने का स्कोप है, स्कोप का मतलब इन दोनों में से कोई एक पार्टिसिपेट कर सकता है क्या किसी रिएक्शन में, ये या ये, इन दोनों में से क्या कोई पार्टिसिपेट कर सकता है कोई रिएक्शन में, तो वो लिखना है। सर HCN बनेगा वो। करेक्ट, वो इंडिकेशन क्वेश्चन में HCN लगा, HCN का नाम देके रखा है ना, HCN देके रखा है, तो आपको देखो HCN बनने का मतलब चांस होगा। कैसे HCN बनेगा, अब यहाँ पे तो Ag प्लस HCN बना नहीं सकता, तो Ag प्लस को भूल जाओ, Cn माइनस होगा जो बनाएगा कुछ, तो Cn माइनस प्लस H प्लस मिला के HCN बनाएगा, तो ही HCN बनेगा। अब सोल्यूशन में तो H प्लस है ही, क्योंकि बफर जो है वो उसका pH 3 है, बफर का अगर pH 3 है तो मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है फिर, 10⁻³ मोल्स पर लीटर, तो H प्लस तो है सोल्यूशन में, मतलब करेक्ट। AgCN इज अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, तो उसका ऐसे दिखाना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज KSP इज गिवन, जिसका भी KSP दिया रहता है वो हमेशा स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करता है। So we have two reactions which are occurring. पहला हमेशा सॉल्ट का डिसोसिएशन होगा, दूसरा हमेशा उसी सॉल्ट में से कोई आयन अगर दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो दिखाना पड़ेगा। So this is what I can write, and I can say let the solubility of AgCN be S moles per liter. वापस वही होगा, यहाँ पे S पहले, यहाँ पे भी S पहले, फिर यहाँ पे S माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी S माइनस एक्स, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN माइनस। Any doubt? So Ag plus is going to remain unaffected, उसका ऐसे रहने वाला है क्योंकि वो किसी दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर चुका है, बट Cn minus is participating in another reaction, and so the final concentration of Cn minus is going to be S minus X. ऐसा होगा। Now please solve this further. यहाँ तक बता दिया मैंने। Now it is similar to the previous question. करो अभी आगे। I'm giving you 2 minutes. Finish it. Okay. Equations लिखा, ऐसा होगा। Next will be this.
Now I can write KSP for the first one, AG इसका AGBR का ऐसा AGCN का I mean, तो AGCN का KSP लिखा है यहाँ पे, value is given 1.2 into 10 to the power of minus 16 S into S minus X हो जाएगा यहाँ पे, ये S और ये S minus X, करेक्ट। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा अभी, कैन आई से नाउ दिस इज फॉर्मेशन ऑफ HCN, HCN बन रहा है, तो जो K होता है, K तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है, तो उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज K का इक्वेशन ये होता है, K का इक्वेशन ये होता है, तो इसका उल्टा क्या है यहाँ पे, तो 1/K हो जाएगा, मतलब तो 1/K लिखा है मैंने ये। So this is equation 1 for KSP and this is 1/K, that is equation 2 corresponding to the formation of HCN. Now it's a buffer solution. Buffer का pH almost constant रहता है, इसीलिए तो buffer पढ़ते हैं हम लोग। तो 10 to the power of -3 minus x, this is going to remain almost 10 to the power of -3. Right? 10 to the power of -3 minus x को सीधा I can say 10 to the power of -3. बफर सॉल्यूशन है तो उसका pH मोर और लेस कांस्टेंट रहता है, या फिर ऐसे सोचो कि x का वैल्यू तो बहुत छोटा है, so equation 2 gets converted to this and now I can multiply 1 and 2 ताकि s minus x कट जाए, मल्टीप्लाइंग 1/2 ये 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने से ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ से sx का वैल्यू आ जाएगा, now what to do, ये sx का वैल्यू डाल दूं, वापस वही आएगा KSP केस में s minus x into s, तो s स्क्वायर माइनस sx का वैल्यू आ चुका है, वो डाल दिया, वापस वही होगा 10 to the power of -16 and 10 to the power of -10 को अगर ऐड करूं तो ऑब्वियसली 10 to the power of -16 कैन बी इग्नोर्ड, आ जाएगा यहाँ से, करेक्ट, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। 2.5 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला, आई नो दैट 1.6 स्क्वायर इज 2.56, 16 स्क्वायर इज 256, ये तो सबको पता होता है, लेकिन हमें चाहिए 2.50, 2.5 मींस 2.50, तो इससे छोटा कर दो थोड़ा, 1.57 1.58 अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही आएगा ना, तो ही 6 से 0 बनेगा, बिकॉज 0.5 का पोर्शन तो सेम रखना है, इसके लिए इसको ज्यादा छोटा भी नहीं कर सकते, 1.6 से थोड़ा सा ही कम किया मैंने, तो 1.57 या 1.58, तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन से आपको निकालना पड़ेगा एंड देन नियरेस्ट ऑप्शन को टिक करोगे, थोड़ा ऊपर से सर, because you have to know all squares of numbers till 30. इससे थोड़ा नीचे लास्ट s स्क्वायर वाला स्टेप, सर इसमें वापस सेम किया क्या हमने, हाँ, पावर कॉमन ले लिया, 10 to the power of -16, yes, 10 to the power of -16 can be
ignored with respect to 10 to the power of minus 10. सर अप्रोक्सीमेशंस कैसे लेना वो कैसे समझे? कभी भी अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो अगर 10 to the power of minus n and 10 to the power of minus m ऐसा है या सब्ट्रैक्शन है प्लस माइनस है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि जो m और n के वैल्यूज है, m और n के वैल्यूज है वो 2 से ज्यादा अगर डिफर कर रहा है, if the difference between m and n is more than 2, then you can ignore that which is smaller. Okay. अगर m और n के बीच का डिफरेंस 2 से ज्यादा है, then you can ignore the one which is smaller. मतलब 10 to the power of minus 6 plus 10 to the power of minus 9. डिफरेंस क्या है 9 और 6 का? 3 is more than 2, तो ये वाला पूरा इग्नोर हो जाएगा. और सर वो इनिशियली जो हमने लिया वो 10 to the power minus 3 minus 6 वाला, हाँ वो बफर है. कोई भी अगर बफर होता है तो याद रखो बफर का pH इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट, ज्यादा चेंज नहीं होता है. तो इसके लिए उसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे लिया था वो सेम रहने वाला है, नो चेंज, बिकॉज दिस इज अ बफर. क्वेश्चन में वही तो इसके लिए इंडिकेशन था, बफर का यही इतना ही सिग्निफिकेंस था कि वो बफर है, इसके लिए उसका pH मोर और लेस सेम होने वाला है. pH मोर और लेस सेम मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सेम, so that is not going to change. So उसको 10 to the power of minus 3 रखना है. ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर? सर लेकिन वो अगर 10 to the power जो भी है टर्म उससे अगर कुछ मल्टीप्लाइड हो और वो खुद 10 के आजू बाजू ही हो तो फिर नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सब वैलिड नहीं है, ये सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं valid है. आई मीन जैसे कि इधर 1.2 into 10 to the power minus 16 था तो पूरा हमने 1.2 को लेके इग्नोर कर दिया. अगर वो 1.2 नहीं जैसे 12 होता नहीं तो आपको ये करना पड़ेगा ना, ये जो आप देख रहे हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के वक्त, दिस टू थिंग्स ऑलवेज शुड बी इन साइंटिफिक नोटेशन. वो तो ऑब्वियस है ना, सब कुछ साइंटिफिक नोटेशन में करके फिर 10 के पावर्स को कंपेयर करना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक नोटेशन? ये तो पता होगा, एक ही डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए. तो हर वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में पहले कन्वर्ट करो और देन कंपेयर करो 10 के पावर्स को, एंड देन यू अप्लाई दैट कि अगर 10 के पावर्स का डिफरेंस 2 से ज्यादा है तो इग्नोर दैट थिंग कंप्लीटली व्हिच इज स्मॉलर देन पावर. Okay, so this is the final answer. Next question. These are all different varieties of questions based on solubility and solubility product. Start करो ये वाला. Okay, next question now.
Okay, start this. How many moles of NH3 must be added to 1 liter of 0.75 molar AgNO3 solution? Okay. In order to reduce the concentration of Ag plus ions to this. कॉपी करो क्वेश्चन, फिर समझाता हूँ. सर थोड़ा सा नीचे. Okay, done. ओके, क्या हो रहा है? सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस बताओ. सर पहले AgNO3 का डिसोसिएशन. नहीं, AgNO3 का डिसोसिएशन क्यों? क्या उसका केस भी दिया है? मतलब ऐसे दिखाने के लिए दिखा सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड. जो केस भी जिसका दिया रहता है वो करना होता है ना. फाइन, यहाँ पे केस भी नहीं दिया है तो छोड़ दो. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? तो Ag प्लस NH3 के साथ रिएक्ट करेगा. एग्जैक्टली, दिस इज द मेन रिएक्शन. सर मतलब उसके पहले का नहीं लिखना है कि वो डिसोसिएट करेगा. नहीं नहीं, अभी अपने नोटबुक में तो सब कुछ लिखना है, वो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लिखना तो है ही.  माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज द रिक्वायर्ड पार्ट हियर?
लिखना तो सब कुछ है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग फॉर, मुझे ये आंसर चाहिए था। ये रिएक्शन होने वाला है। अब कैसे पता चला कि रिएक्शन होने वाला है? क्योंकि क्वेश्चन में देखो AgNH3 ट्वाइस प्लस लिखा है, मतलब ये बनने वाला है। अब Ag प्लस कहां से आ रहा है? AgNO3 से आ रहा है, मतलब AgNO3 से जो Ag प्लस आएगा दैट विल रिएक्ट विद दिस, ऐसा हो जाएगा। तो इनिशियली मोल्स ऑफ AgNO3 जितने हैं दैट इज नथिंग बट द इनिशियल मोल्स ऑफ Ag प्लस 0.75 मोल्स। One liter of 0.75 molar, I can get the value of moles, multiply volume but by molarity. So 0.75 into 1 is 0.75. 0.75 moles of AgNO3 are present initially. 0.75 moles of AgNO3 का मतलब होता है 0.75 moles of Ag plus. सर AgNO3 स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ना, इसीलिए नहीं, वैसा नहीं, स्ट्रॉन्ग या वीक सॉल्ट को नहीं बोल सकते, either it is sparingly soluble or it is fully soluble. So basically it is fully soluble. Yes, अगर किसी सॉल्ट का KSP नहीं दिया है मतलब वो fully soluble है। कोई भी क्वेश्चन में अगर KSP किसी सॉल्ट का नहीं दिया है तो मतलब वो fully soluble है, लेकिन अगर KSP दिया है तो मतलब वो sparingly soluble है। Okay. जैसे you must have learned in periodic classification कि all carbonates, all alkali metal carbonates are dash, क्या है डैश के अंदर? All alkali metal carbonates are dash in water. Fill in the blank. अरे fill in the blank. बेसिक इन वाटर या एसिडिक वैसा नहीं पूछा, सल्यूबल या इनसल्यूबल वैसा पूछ रहा हूं। बेसिक तो है ही, वो तो ठीक है, बट सल्यूबल और इनसल्यूबल, दे आर सल्यूबल। ओके फाइन, तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब जब NH3 को ऐड करोगे तो ये वाला रिएक्शन चालू हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि अमोनिया के कितने मोल्स डालने हैं, सो वी डोंट नो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, लेट X moles of ammonia be added. So let X moles of ammonia be added. क्वेश्चन में वही पूछा है कि कितने मोल्स ऑफ अमोनिया डालने चाहिए, तो X मोल्स, तो मैंने इसके लिए लिखा है यहाँ पे X, एंड Ag प्लस के तो शुरुआत में 0.75 मोल्स थे। अब क्वेश्चन में और एक कंडीशन बोला है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस फाइनली शुड रिड्यूस टू दिस वैल्यू। मतलब क्या है इसका, जब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस लेफ्ट ओवर रहेगा सोल्यूशन में, that should be equal to 5 into 10 to the power of minus 8. Reduce the concentration of Ag plus ions to 5 into 10 to the power of minus 8. तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दे के रखा है 5 into 10 to the power of minus 8, तो ऐसा लिख सकते हैं ना। टेल मी वन थिंग, पहले 0.75 था, अभी 5 into 10 to the power of minus 8 है, इसका मतलब क्या है, ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच इतना कंज्यूम हो चुका है Ag प्लस। हाँ सर, correct, which means 0.75 minus 5 into 10 to the power of minus 8 is moles of Ag plus consumed already in this reaction or reacted. अब ये वैल्यू
को अप्रोक्सीमेटली मैं 0.75 बोल सकता हूँ ना, इतना छोटा है। तो मान लो 0.75 मोल्स ऑफ Ag प्लस हैव रिएक्टेड। इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो ऑलमोस्ट 0.75 ही आएगा ना। 5 into 10 to the power of -8 है, इट्स नेग्लिजिबल। तो अगर Ag प्लस के 0.75 मोल्स रिएक्ट होंगे तो अमोनिया के कितने मोल्स रिएक्ट होंगे? 1.5, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया इज 2 and इसका कोएफिशिएंट 1, which means moles of NH3 reacted is equal to 2 into 0.75. 2 into 0.75 is 1.5. डाला था x मोल्स, रिएक्ट हो चुका है 1.5 मोल्स, तो बाकी कितना रहेगा? x minus 1.5 moles of ammonia will be left behind. And 0.75 moles of AgNH3 twice plus will be formed. Because इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो Ag प्लस जितना रिएक्ट होगा उतना ही ये बनेगा। करेक्ट? Any doubt till this part? What next should I do after this? फिर हम लोग को तो पता है ना इसका केएफ कितना है। हाँ, इसका केएफ पता है, क्वेश्चन में दिया है, तो कर दो। अभी केएफ ही है, अभी केडी मत यूज करना, बिकॉज बन रहा है ना एजेनिशिट वाइज, तो केएफ ही दिया है डायरेक्टली क्वेश्चन में, तो केएफ है हमारे पास, ये हो जाएगा केएफ। दिस इज नथिंग बट केएफ, दैट इज कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन। ये अपॉन 1 से क्यों डिवाइड किया है मैंने हर जगह? अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1, ये क्यों किया है? 1 लीटर। एग्जैक्टली। ये जब K लिखते हो तो Kc या जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखते हो उसमें अपॉन वॉल्यूम से होता है ना, अपॉन लीटर्स, तो मैंने 1 से डिवाइड किया है। So this is going to be the equation. Solve this, ऐसा आ जाएगा सॉल्व करने से। X is equal to 1.89. So 1.89 moles of ammonia must be added. Okay. Any doubt? Okay. Next question करूं? Find the minimum number of moles of NH3 required to be added to 1 liter solution so as to dissolve 0.1 moles of AgCl. और ये आपको सब देके रखा है क्वेश्चन। Copy this question. Find the minimum number of moles of NH3 required to be added to 1 liter solution so as to dissolve 0.1 moles of AgCl. इसका मतलब क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में जो लिखा है इस अच्छे से इसको देखो ध्यान से। Focus on this part. Focus on this part. कभी भी ऐसे
अगर लिखा है so as to dissolve this many moles of a sparingly soluble salt, उसका मतलब होता है कि आपको solubility is given. क्या मतलब होता है उसका? Solubility is equal to 0.1 mole per liter. Per liter क्यों? Because 1 liter solution. अगर ये मानो यहाँ पे 1 के बदले में यहाँ पे होता 2, तो S की वैल्यू क्या होती? S इज इक्वल टू solubility इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 2 मोल्स पर लीटर, ऐसा हो जाता है. मतलब ये solubility का वैल्यू देके रखा है. So 0.1 upon 1. इसका मतलब ये होता है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे so as to dissolve this many moles of a sparingly soluble salt, मतलब उसकी solubility देके रखी है ऑलरेडी. तो ये आपको बताने के लिए क्वेश्चन दिया मैंने. Whenever they say so as to dissolve this many moles of a sparingly soluble salt, मतलब that is the number of moles present in 1 liter, मतलब वो S की वैल्यू है. So S is small s is equal to 0.1 moles upon 1 liter, moles per liter, because 1 liter से divide क्यों किया? Because volume of solution is 1 liter. फाइन. तो क्या होगा? फर्स्ट ये तो देके रखा है रिएक्शन में, और क्या गिवन है? KSP of AgCl and Kf of AgNH3 twice plus. चलो ये सब देके रखा है. क्या करूं? What is the first reaction that I should write? Yes. What is the first reaction that I should write? कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे solubility involved हो, what is the first reaction that we write? सर वो सॉल्ट का डिसोसिएशन. हाँ, जो solubility जिस सॉल्ट का निकालना है उसका डिसोसिएशन. तो ऐसा हो जाएगा. These are the reactions. First AgCl का dissociation, because that is the salt whose solubility is given. Ag plus plus 2NH3 giving AgNH3 twice plus, ये वापस लिखना पड़ेगा क्योंकि जो Ag plus यहाँ से आया है वो Ag plus वापस NH3 के साथ कंबाइन करेगा. वो कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना AgNH3 twice के बारे में, मतलब वो बनेगा. अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं तो मुझे 3 मिलेगा, और ऑलरेडी क्वेश्चन में मुझे 3 देके रखा है. ये जो क्वेश्चन में दिया है थर्ड वाला रिएक्शन, that is nothing but 1 and 2 का addition. If I add 1 and 2, I'll get 3. If I add 1 and 2, I'll get 3. तो 1 and 2 तो लिखना ही पड़ेगा मुझे किसी भी हालत में. So this reaction which is given to me in the question itself is nothing but the sum of 1 and 2. That is first and second reactions. तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा. Now, as per your knowledge of chemical equilibrium, if two reactions are added, what happens to the equilibrium constant of the resultant मल्टीप्लाई reaction? हो जाएगा. Exactly. तो 1 and 2 को अगर ऐड किया है मैंने, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 का क्या है? KSP, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या है? KF. तो KSP into KF जो आएगा, that is nothing but the थर्ड वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो ऐसा हो जाएगा थर्ड वाले का. हाँ सर. राइट. अब पूछा है क्या?
how many moles of ammonia are required. So let the number of moles of ammonia required be x. So and solubility तो देखिए रखा है पहले से क्वेश्चन में. So as to dissolve का मतलब solubility होता है. तो ऐसा कर सकते हैं भी हम लोग. x moles of ammonia ऐड किया है तो x minus 2y moles अगर रिएक्ट हो रहे हैं, मतलब अगर 2y moles रिएक्ट हो रहे हैं तो x minus 2y moles बचेंगे और y moles of AgNH3 twice plus and y moles of Cl minus will be formed. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी निकाला था 10 to the power of -2, that is इस वाले का. So I can say that 10 to the power of -2 is equal to this product का concentration, next Cl minus का concentration because Cl minus is the other product upon NH3 whole square. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग थर्ड के लिए. AgCl को इंक्लूड नहीं करेंगे because AgCl is a solid. Solids and liquids are ignored in all questions. अभी देखो अगर इसका लिखोगे तो ये S minus x हो जाएगा और ये तो ऐसे रहने वाला है. हाँ सर, हमें x का वैल्यू आ जाएगा. S का वैल्यू ऑलरेडी पता है ना, क्वेश्चन में S is given to you as 0.1 moles per liter, which is nothing but the concentration of Cl minus. मतलब Cl minus का concentration हमारे पास है, Cl minus का concentration हमारे पास है, which is 0.1 moles per liter. क्यों? Because S क्वेश्चन में देख रखा है, solubility is 0.1 moles per liter. So Cl minus is S. सर वो x नहीं होगा ना, s minus X नहीं, S solubility नहीं बोला सर, ना. मैं Ag प्लस की बात कर रहा हूँ, s minus x नहीं हो सकता ना. S minus x होगा ना क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है ना X. सर लेकिन वो x मोल्स तो हम ऐड कर रहे हैं ना टू NH3 का. अच्छा तो इसको y मान z मान लो फिर. Z मान लो. हाँ तो यहाँ पे S minus Z moles of Ag plus are left behind. What is Z? Z is the number of moles of Ag plus reacted in reaction 2. Right. तो S जो है, Z भी आ जाए. जो S है that is nothing but solubility and वो क्लोराइड का concentration होगा ना कि Ag plus का, क्योंकि Ag plus का concentration तो S minus Z है. तो S is nothing but the concentration of Cl minus. Because Cl minus आगे कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसका कोई चेंज नहीं आएगा Cl minus में. Hence S is equal to 0.1 moles per liter, which is nothing but the concentration of Cl minus. तो मैं यहाँ पे Cl minus जब लिख रहा हूँ y, can I say y is nothing but 0.1 multiplied by 1, that is 0.1. क्योंकि Cl minus का concentration है 0.1 moles per liter. ये मोलैरिटी है, मोल्स नहीं है. तो मोलैरिटी को मैं लीटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मोल्स आएगा. क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट द वॉल्यूम इज 1 liter. So I multiply this by 1 and I get the number of moles of Cl minus, which is 0.1 into 1, which is 0.1. And that is nothing but y. Y बन रहा है ना Cl minus के moles. तो 0.1 moles of Cl minus are present. That is equal to y. तो y का वैल्यू हमारे पास है, मतलब तब डाल दो इसमें इक्विलिब्रियम कॉन्केसी के एक्सप्रेशन में सब कुछ. व्हाट इज दिस? दिस इज NH3 का स्क्वायर. व्हाट इज दिस? दिस इज AgNH3 ट्वाइस प्लस एंड ये क्या है? Cl माइनस. तो y का वैल्यू तो है 0.1. यू कैन पुट y as 0.1. y upon 1 is 0.1, so y will be equal to 0.1 into 1 molarity into liter, which is 0.1 moles.
डाल दो y का वैल्यू 0.1, ऐसे ही आ जाएगा सब कुछ। सॉल्व कर लोगे इसको, x का वैल्यू आ गया, मतलब इतने मोल्स ऑफ अमोनिया मस्ट बी एडेड। ओके